آج بہت سارے چمگادڑ دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا ہمارا سسٹم مانو، وہ کہہ رہا ہمارا سسٹم مانو، وہ کہہ رہا ہمارا قانون مانو، وہ کہہ رہا ہے تم بھارتی ہو تو بھارتی کو یہ کہنا پڑے گا. کوئی کہہ رہا ہے تم بھارت کے رہنے والے ہو تو تمہیں ہرے کرشنا یا وہ کیا ہے اذان بند کرنا پڑے گی. وہ کہتا ہے تمہیں ہمارے بتوں کو سجدہ کرنا پڑے گا. وہ کہتا ہے تمہیں جے شری رام کہنا. بولو کہہ دو بیٹا ہم کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے ہیں. اگر تمہاری جیسی زبردستی ہم کرتے نا تو آج تم یہاں زمین پر کیا تمہارے پرکھوں نظر نہیں آتے. 850 برس میں یہاں تو 8 برس میں معاملہ صاف کیا 850 برس میں تمہارا صفایا ہو جاتا. بولو ہو جاتا کہ نہیں ہوتا؟ شکر ادا کرو ہمارا دین بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، ہم میں عدل ہے، انصاف ہے، ہر ایک کے ساتھ امیر ہو غریب ہو مساوات ہے، سمانتا ہے، برابری ہے، حقوق کی ادائیگی ہے. ہمارا اسلام وہ دین ہے جو ہمیں ہر قدم پہ روکتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کرو، سب کے ساتھ عدل کرو، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر ستم نہیں ہونا چاہیے. اور بتاؤ بھارت کے لوگوں کو اے مسلمانوں کہ سنو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، یہ شکشا دی ہے کہ اس نبی کے زمانے میں ایک عورت نے چوری کی تھی، بڑے گھرانے کی عورت تھی، بڑے باپ کی بیٹی تھی. لوگ آئے اور سفارش لے کر کے آئے کہ چلو مدنی تاجدار کی خدمت میں، بڑے باپ کی بیٹی ہے، بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، بے عزتی ہو جائے گی، گھرانے کی ناک کٹ جائے گی، لوگ اس کے گھر میں شادیاں نہیں کریں گے، اس کے گھر کی بیٹی نے چوری کی ہے. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ کو لے کے گئے، زید اسامہ کو لے کے گئے کہ بڑے چہتے ہیں آپ سفارش کر دیجئے کہ یہ سزا جو ہاتھ کاٹنے کی ہے یہ معاف کر دی جائے. اللہ کے نبی بڑے گھرانے کی بیٹی ہے معاف کر دو. اللہ کے نبی نے جو عدل و انصاف کے پیکر تھے، جو سراپا عدل و انصاف تھے، جو عدل و انصاف کا جھنڈا گاڑنے کے لیے آئے تھے، جو ظلم و تاریکیوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، جو رحمتوں کی برکھا لے کے آئے تھے، جو بیواؤں اور یتیموں کے سروں پر شفقت و محبت کا تاج پہنانے آئے تھے، جو راڈوں کی بیواہ کروانے آئے تھے، جو غریبوں امیروں کے مسیحا تھے، جو اللہ تک لوگوں کو پہنچانے والے تھے، اس نبی رحمت نے کیا کہا تھا؟ لوگوں کو بتاؤ بھارت کے لوگوں کو یہ ہمارا اتہاس ہے، یہ ہمارے نبی رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها والذی نفسی بیدہ. اے لوگوں میرے صحابہ تمہاری بات سراخوں پر، تمہاری عظمت، تمہاری سفارش سراخوں پر، لیکن تم اس لڑکی کے لیے سفارش کرنے آئے ہو. ارے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ زہرا بھی چوری میں پکڑی جاتی تو رب کعبہ کی قسم ہے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے سے دریغ نہیں. ہم اس نبی کے ماننے ہم بولو تمہیں کیا پتا؟ اولاد ہو تو تمہیں پتا ہو، بے اولادو مر جاؤ گے، نہ کوئی نام نہ کوئی نشان، ختم کس کے لیے؟ ہم سے پوچھو اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے. ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں مسلمانوں سنو. زبان تقریر بہت سنی آپ نے، میں نہ بھی کروں تو کافی ہے، بہت سنی. اب تقریر کا زمانہ نہیں رہا، وقت نہیں رہا تقریر کا. اب وقت یہ ہے کہ زبان اور لفظ سے زیادہ اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے کردار، اپنے کیریکٹر، اپنے سلوک سے اسلام کو ثابت. چلتے پھرتے لوگ تمہیں مسلمان کہیں، یہ تو مسلمان جا رہا ہے. آج ہم کو کہتے ہیں ٹیررسٹ جا رہے ہیں. جتنے بھی پکڑے جا رہے ہیں، جتنے بھی ISI کے ایجنٹ پاکستان کے جاسوس پکڑے جا رہے ہیں، سارے عبداللہ عبد الرحمان پکڑے جا رہے ہیں. بولو ہاں بولو، شرم آتی ہے بے غیرتو اور میڈیا کے بے غیرتو. جاؤ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو. تمہیں شرم آتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے؟ بیٹا ڈرتے ہو؟ تمہارے گھر کا بندہ ہے. عدل ہو کرو، عدل کرو، انصاف کرو، اپنی ذات سے بھی انصاف کرو. جی ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے جھوٹ نہ بولو. جھوٹ سجن رے جھوٹ نہ بولو.
खुदा के पास जाना है। एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। झूठ बोल बोल कर हुकूमतें चलाते हो, झूठ बोल बोल कर लोगों को उल्लू बनाते हो। हमारा ये पैगाम, इस्लाम का पैगाम सिर्फ इन बेचारे खेत जोतने वाले मजदूर और मजदूर करने वाले फैक्ट्रियों कंपनियों के लिए नहीं है। हमारा इस्लाम सारी कायनात के लिए है। बादशाहों से लेकर गरीबों फकीरों तक, टाट और बोरिए और पुआलों पर बैठने वालों तक के लिए हमारा इस्लाम अदल और इंसाफ का पैगाम है। अल्लाह ने इस इस्लाम को इसीलिए भेजा है ताकि अल्लाह के बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में लाया जाए, ईंट और पत्थर की गुलामी न करवाई जाए। मुसलमानों, इसलिए अपने इस्लाम को पहचानो। इस्लाम का माना मैंने मिसालों से बता दिया और मुसलमान का भी माना बता दिया। कैसे? चांद क्यों मुसलमान है? सूरज क्यों मुसलमान है? आंख भी मुसलमान क्यों है? बोलो। इसलिए कि इसके ऊपर हमारी तुम्हारी मुख्यमंत्री, वजीर आजम, बादशाह सऊदी और जापान का हुक्म नहीं चलता, बल्कि किसके हुक्म से यह आंख दिख रही है? अल्लाह के हुक्म से। कान किसके हुक्म से सुन रहे हैं? इसके ऊपर किसकी हुक्मरानी? हाँ जी, तो तुम मुसलमानों से नफरत करते हो ना। बाद टुटपुजिए छठे जिनको पता ही नहीं है हम्माम बाथरूम जाने का, सिर्फ कपड़ों से पहचाने जाते हैं बेचारे। कपड़े लपेट लपेट कर बताते हैं कि हम फलाने। नहीं समझ रहा। इस जमाने में हमारे वजीर आजम जी ने कहा था लोग कपड़ों से पहचाने जाएंगे, तो हमारे लोग बड़े नाराज हुए। मैं कहता हूं भारत के लोगों, नाराज होने की कौन सी बात है? मोदी जी ने बहुत प्यारी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? लोग पहचाने जा रहे हैं कपड़ों से, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? फालतू में गमछे ऑरेंज कलर के लपेट के चलते हैं, किस लिए? ताकि हमको पुलिस न पकड़े, हमको पुलिस। बोलो। और तुम भी बेवकूफ हो, फालतू में तुम मुंह सपाटा करवा के मोछ दाढ़ी तो सोचते हो कि हम ताकि हिंदू बन जाएं, हमें लोग मुसलमान हैं। अबे उल्लू हो, पागल हो, अल्लाह की कसम पागल हो, पागल हो। ये दाढ़ियां पजामे गीले कर देती हैं, पैंट शर्ट क्या कर देती है? बोलो। तुम निजाम और सिस्टम पे रहो। हमारे भारत का जो सिस्टम है, निजाम है, जो हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान है। जी जनाब, नाम तो सब लेते हैं कि संविधान संविधान, लेकिन उसी के गर्दन के ऊपर छुरी चढ़ा रहा। बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत के हिसाब से। कदर करो, यहां सबको जीने का हक है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, यहां सबका मुल्क है। यहां हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, पारसी भी हैं, हर धर्म के लोग हमारे देश। यही हमारे मुल्क की का हुस्न है, हमारे देश की खूबसूरती है। और इस्लाम की भी यही खूबसूरती है कि इस इस्लाम ने जहां कहीं भी हुकूमत की है, जहां कहीं भी इस्लाम की हुक्मरानी रही है, सुनो कान खोल करके, इस्लाम को बदनाम करने वालों, तुम्हें नहीं पता इस्लाम की हैसियत क्या है। हरगिज इस्लाम ने जुल्म नहीं किया, दावत नहीं दी। हज़रत सैयदना उमर फारूक आजम की मैं मिसाल ऐसे चोहड़े चमारों के सामने क्या पेश करूं? मुझे तो समझ नहीं आती। आजकल के इन चटपुजिए हुक्मरानों के मुकाबले में हजरत उमर फारूक आजम की मिसाल पेश करूं कि एक बुढ़ा मदीने की गली में भीख मांग रहा था। उमर फारूक आजम ने उसको पकड़ा, कहा तू कौन है? कहा मैं फला इब्ने फला हूं, यहूदी है। कौन है? मुसलमान नहीं था वो। कौन था? भीख मांग रहा था। कहा तू और भीख मांग रहा है, और हमारी सल्तनत में तू भीख मांग रहा है, चल। गए और बैतुल माल का दरवाजा खोला और कहा आज के बाद से तू हमें मदीने की गलियों में नजर ना आना, तेरा वजीफा बैतुल माल से जारी होगा। तू भीख न मांग, तेरा वजीफा बैतुल माल से जाएगा, अपने घर में खा पी। अल्लाह अकबर। ये था अदल, ये थी हमारी हुकूमतें कि वो हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई हरगिज हरगिज
عدل تھا. آج کہتے ہیں مسلمان جہاں رہیں گے وہاں انصاف نہیں ہوگا. ہم سے انصاف سیکھو. یہ انصاف ہی کی نعمت ہے کہ آج ہمارا بھارت ایک زمانے میں سونے کی چڑیا کہلایا کرتا. بولو کہلایا کرتا کہ نہیں؟ آج فقیروں کی آخری لسٹ میں ہم موجود ہیں. ہم نہ جانے کتنے ملین ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے, کتنے کروڑ کا قرضہ لیا ہوا پیدا ہوتا ہے. آج ہم نے یہ درگتی کری ہے 70 برس کے اندر, اپنے ملک کا تیاں پاچا کیا ہوا ہے. اس لیے اے لوگوں, مسلمانوں, آپ کو اسلام کو سمجھنا پڑے گا. اسلام کو اچھی طرح سے اپنے بچوں کے, ماؤں کے, بیٹیوں کے, بہنوں کے ذہن میں بٹھانا پڑے گا کہ ہمارا اسلام امن اور شانتی کا اسلام ہے. دھرم مذہب ہے, یہ مذہب نہیں دین ہے. ہمارا اسلام, اس کا حسن یہ ہے کہ یہ زمین پہ نہیں بنا, یہ زمین پہ نہیں بنا مسلمانوں. کہاں سے بن کے آیا؟ بولو کہاں سے بن کے آیا؟ آسمان سے بن کے آیا. کس نے بنایا؟ جس نے ہمیں بنایا, ساری کائنات نے بنایا. اسی اللہ نے اسلام کو بھی بنایا ہے, الحمدللہ اسی اللہ نے. اور دنیا کے دوسرے دھرم جو اس ہیں یہ بنے ہیں, وہ کہاں بنے ہیں؟ کسی اندھے نے, کسی لولے نے, کسی سور نے, کسی میسور نے, نہ جانے کن کن لوگوں نے بنا بنا کے کہا یہ بھی دھرم, یہ بھی دھرم, یہ بھی دھرم. اللہ ان کے ٹوٹے اور پھوٹے کرم. اسلام و دین ہے, اس کا حسن یہ ہے کہ وہ اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اے لوگوں سنو, دین پر اگر تمہیں چلنا ہے تو اسلام پہ چلو, ورنہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی ادر دین اور دھرم لاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے اسے تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا اور اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا, نرک میں جاؤ گے. اس لیے مسلمانوں شکر کرو اللہ نے تمہیں نرک سے بچایا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. اسلام کے اندر سمانتا ہے, مساوات ہے, برابری ہے. کوئی چھوت چھات نہیں, کوئی ذات پات نہیں, کوئی شیخ سید خان پٹھان نہیں, کوئی مغل نہیں, کوئی جولاہا نہیں. اسلام کے اندر سب کے اندر سمانتا ہے, برابری ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے دنیا کے لوگوں, اے سنسار کے بادشاہوں, سنو, صرف مسلمان نہیں, سب لوگ سنو. کیا قرآن دے سارے لوگ سنو. ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے. کس سے؟ ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا, ایک مرد عورت سے پیدا کیا. اسی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. اور تم کو ہم نے مختلف قبیلے اور خاندانوں میں بانٹا ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اشرافیہ اور رذالت اور شرافت کرو, خاندانوں کے اوپر فخر کرو, ہم تو سادات ہیں, ہمارے رسول ہیں, اور بھو کھاؤ, شراب پیو, جنا کرو. نہ, کوئی بھی سادات رسول, سادات ہو, کوئی سید ہو, کوئی مغل ہو, کوئی پٹھان ہو, کچھ بھی نہیں, سب آدم کی اولاد ہیں. کون؟ بولو. آدم کی اولاد ہیں. اور آدم مٹی سے بنائے گئے. آدم کس سے بنائے گئے؟ اور ہم سب کس سے بنائے گئے؟ ہم سب مٹی سے بنائے گئے. اللہ نے فرمایا ہم نے خاندان اور قبیلے جو بنائے ہیں لتعارفوا, تاکہ آپس میں تعارف, آپس میں محبت پیدا کرو, اخوت اور بھائی چارگی, سمانتا اور برابری ہو. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی, یہ ہے اسلام کا حسن کہ اللہ کے نبی ایک پیالے میں پانی پیتے ہیں, ایک بیوی کو دیتے ہیں, وہ پیتی ہیں ام المومنین. اللہ کے نبی جہاں انہوں نے ہونٹ لگایا تھا وہیں سے اللہ کے نبی بھی پیتے ہیں, پھر دوسرے کو دیتے, تیسرے کو دیتے. جہاں جہاں آپ کی بیویوں نے ہونٹ لگا لگا کے پانی پیے تھے, نبی کریم نے بھی وہیں سے ہونٹ لگا کر کے پانی پیا. یہ تھا عدل, تاکہ کسی بیوی کو ایسا نہ لگے کہ ہم سے زیادہ محبت نہیں کرتے, فلاں سے کرتے ہیں, فلاں سے نہیں کرتے. جب جو نبی اپنے گھر والی سے عدل کرتا ہو, وہ نبی کائنات سے کیوں نہیں عدل کرے, کیوں نہ انصاف کرے؟ یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارا اسلام. میں کہاں تک اسلام کا حسن اور خوبصورتی بتاؤں. اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا. کیوں؟ معلوم ہے, کیونکہ شراب پی کر آدمی پاگل ہو جاتا ہے. ام الخبائث ہے, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. شیطان سے کسی نے پوچھا ایک کام کروانا ہے اور ایک کام کر دے اور 10 کام کروا لے, وہ کون سا عمل ہے کہ آدمی ایک کام کرے بس
تو اس کو ایک کام کروا دے اور تو کچھ نہ بول، اس کے بعد وہ خود بخود کرتا پھرے۔ اس نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا چلو۔ لے کے گیا شراب کی بھٹی پر، شراب پلا دیا، دبا کے شراب پلا دیا، بندہ ٹن۔ وہاں سے نکلا لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے، اور جناب ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا، گھر کے اندر گھس گیا، گھس کر کے اس عورت سے زنا کیا۔ اس کے بعد زنا کاری کرنے کے بعد میں ہنگامہ اور شور ہوا، عورت نے شور مچایا تو مارے ڈر کے ادھر سے ادھر بھاگنے لگا، تو اس عورت کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے گھر سے باہر نکلا، لوگوں نے پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ شیطان سب تماشا دکھا رہا تھا، کہا دیکھا صرف ہم نے شراب پلائی تھی بس، اور اس نے کتنے بھیانک جرم کیے۔ شراب پیا تو زنا بھی کیا، زنا بھی کیا، چوری بھی کی، چوری بھی کی تو قتل بھی کیا، قتل بھی کیا تو اپنا خود بھی کیا ہو گیا۔ یہ ہے ام الخبائث، تمام خبیث بیماریوں کی دوا۔ ہم نے سنا نتیش کمار جی جب سے آئے ہیں بہار کے اندر شراب بند ہے۔ اے نتیش جی، ہم آپ کو سیلوٹ کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے، الحمدللہ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے، ورنہ یہ شراب اب تو جتنے بھی بہار کے علاوہ جتنے بھی سرکاری ٹھیکے غیر بہار کے اندر دوسرے اسٹیٹوں میں ہیں، وہ تو سارے سرکاری ٹھیکے ہیں، اور تو باقاعدہ لائسنس لے کر کے، لیکن تمہیں سلام سلوٹ ہے، نہ جانے کیا سوچ کر آپ نے شراب کے اوپر پابندی لگائی، اور شاید ہماری ماں بہنوں نے اسی لیے جم کر آپ کو ووٹ دیا اور آپ الیکشن جیت گئے کہ ان کی آبرو محفوظ ہے، ان کے شوہر پر محفوظ ہے الحمدللہ، ورنہ شراب پی کر کے آدمی حیوان اور بندر اور جانور بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے عقل کو خراب کرنے والی چیز کے اوپر حد مقرر کی ہے کہ اگر شراب حرام ہے، شراب اگر پیتے ہوئے کوئی پکڑا گیا اس کے درے مارے جائیں۔ شراب کرنے کے بعد آدمی زنا بھی حرام کیا، اور زنا حرام کرنے کے بجائے حرام کیا اور اس کے ساتھ نکاح کو حلال کر دیا۔ عزیزان گرامی، نکاح کرو، اگر ایک بیوی سے پیٹ نہیں بھرتا دو کرو، دو سے پیٹ نہیں بھرتا تین کرو، تین سے پیٹ نہیں بھرتا چار کرو، چار میں تو تمہاری ہڈی گڈی پتنی کہاں جائے گی؟ اتنا تو کر کے دیکھو، اتنا اللہ نے بنایا ہے، اس لیے اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا جسم کتنا پاورفل ہے اور کتنا تم برداشت کر سکتے ہو۔ سعودی عرب میں بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے دوست احباب کبھی کبھی مذاق میں کہتے ہیں یار ایک اور کر لو، کہتے ہیں ایک کیا تو ملک سے باہر ہو گئے، دوسری کریں گے تو شاید زندگی سے باہر ہو جائیں گے۔ تو عورتوں کو بھی پتا ہے، وہ جب ایک عمر آتی ہے آپ کی تو عورتیں بھی کہتی ہوں کہ کبھی آزمانا بیگم مجھے ایک اور دل کہتا کرنے کے لیے، وہ کہہ دے گی جاؤ کر لو، کیونکہ ادھر پتا ہے تم کتنے پانی میں ہو مسٹر، ہاں تم کتنے پانی میں ہو، اب تمہیں سمجھ آئیے۔ بہرحال تو عدل ہے، انصاف ہے، ہر چیز کے اندر خوبصورتی ہے، حسن ہے۔ نماز کا حکم دیا، فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھو اٹھ کے، اللہ اکبر، نماز سے پہلے وضو بناؤ، کلی کرو، مسواک کرو، ہاتھ دھلو، منہ دھلو۔ اور جن لوگ نماز فجر کی نہیں پڑھتے دن نکلنے تک سوتے رہتے، پتہ ہے بے خبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے کان میں ان کے منہ میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنے شوہروں کو جگاؤ نماز کے لیے، یہ اسلام کا حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ آپ بالکل فجر کے وقت آپ جو ہے کیا کہنے پونے 4 بجے اذان ہوتی ہے آج کے آپ کے علاقے میں، یا 4 بجے جو بھی 4:15 بجے جو بھی ہوتی ہے، میرا اٹھیے اور آپ وضو بنائیے، نماز ادا کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیے، اپنے بچوں کو بھی جگوائیے۔ یہ 7 برس کے بچے ہو جائیں، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچوں کو 7 سب سنین، وہ 7 برس کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، انہیں نماز پڑھاؤ، اور اگر 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر کے پڑھاؤ۔ یہ اسلام کا حسن ہے۔ اپنی لڑکیوں کو پردہ کراؤ، اپنی بچیوں کو پردہ کراؤ، اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ۔ جی جناب علی، کیونکہ اس سے زنا بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اسلام نے ہر تمام چیزوں کو، یہ حسن ہے اسلام کا، یہ خوبصورتی ہے۔ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا مال ہے۔ 2.5% زکوٰۃ نکالو۔ جی جناب علی، یہ غریبوں کا حق ہے۔ حق وفی اموالکم حق للسائل محروم، تمہارے مالوں میں
तुम्हारे मालों में महरूमों का भी, मांगने वालों का भी, सबका हक है। गरज मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, इस्लाम बड़ा हसीन, बड़ा जमालियाती दीन है, बड़ा खूबसूरत दीन है। इस्लाम के अंदर अमन है, इस्लाम के अंदर सलामती है, इस्लाम के अंदर शांति है, इस्लाम के अंदर बराबरी है, इस्लाम के अंदर उखुवत है, इस्लाम के अंदर रहमदिली है, इस्लाम के अंदर कुत्ते को भी एक गुनहगार फाहिशा तवाइफ ने पानी पिला दिया, नबी कायनात फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत उसे अता फरमाई। कितना कितना बड़ा दीन है इस्लाम। इसलिए इस इस्लाम की कदर करो, इस इस्लाम की अजमत को पढ़ो, पढ़ाओ। मैं अब ज्यादा क्या मैं आपसे बयान कर सकता हूं, यही चंद बातें थी, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है, यही चंद बातें थी और मैंने आप हजरात की खिदमत में रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बारे इलाहा हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह तुझसे खैर की उम्मीद लिए हुए, शहर का वक्त है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें तमाम गुनाहों से पाको साफ फरमाए। हमारे माल में, हमारी दौलत में, हमारी जिंदगी में, हमारे उम्र में अल्लाह तबारक बरकत ही बरकत अता फरमाए। ए अल्लाह हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफायाबी अता फरमा। ए अल्लाह जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह हमें अपने नबी के ताबेदार बना, अपने नबी के अहकाम पे चलने वाला बना। ए अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर चलने वाला बना। ए अल्लाह हमारे सफों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। ए अल्लाह जो हम पर जुल्म ढाएं, जो हम पर सितम ढाएं, जो हमारे ऊपर अदल और इंसाफ ना करें, जो हमको और हमारे दीन को मिटाने की फिक्र करें, ए अल्लाह तू उनके ऊपर, उनके मकर को, उनके कैद को, उनके जुल्म को उन्हीं के ऊपर लौटा दे मौला। ए अल्लाह उन्हें नीस्तो नाबूद फरमा दे मौला। ए अल्लाह उनके साजिशों को उन्हीं के ऊपर लौटा दे मौला। ए अल्लाह भारत के अंदर अमन और सुकून अता फरमा। ए अल्लाह भारत के अंदर जो बम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जो भारत के अमन और सुकून को मिटाने के दर पे, अल्लाह उन्हें तू मिटा दे मौला, उन्हें हलाक को बर्बाद फरमा दे मौला। ए अल्लाह इस्लाम को, इस्लाम के बोलबाला फरमा दे मौला। ए अल्लाह इस्लाम के झंडे को बुलंद फरमा मौला। ए अल्लाह सबको इस्लाम की समझ अता फरमा, सबको नबी कायनात रहमतुल लिल आलमीन के दीन रहमत पर अमल करने वाला बना दे मौला। ए अल्लाह हम सब के खताओं गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी एक सवाल है शेख। सवाल है, मैंने अपना 10 मिनट रखा है अभी, क्योंकि भाई के सवाल का जवाब भी देना है, किसी ने पूछा है, तो आप लोग तशरीफ रखें। इसके बाद जी सवाल है कि मदरसा के नाम से वक्फ की गई जमीन को बेचकर ईदगाह के लिए जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? इसकी जमीन को, मदरसा के लिए कोई जमीन वक्फ की गई थी, उस जमीन को बेचकर ईदगाह के लिए जमीन खरीद सकते हैं या नहीं? नहीं, जिसके लिए वो वक्फ की गई है वो जमीन उसी की, उससे ना आप ईदगाह बना सकते हैं ना आप मस्जिद बना सकते हैं। उसे मदरसे के लिए है तो मदरसा ही बने। जी दूसरा सवाल है, शादी में जलसा कराकर शेहरा पढ़ाना कैसा है? शादी में जलसा कराकर शेहरा पढ़ाना, शेर वगैरह पढ़ाते हैं, कवाली पढ़ाते हैं वगैरह। अच्छा, जब मतलब शादी में जलसा, अगर वलीमा वलीमा का मौका है, वलीमे के अंदर लोग जमा होते हैं और शोरा हजरात बुलाए, कुछ खुशी में सेहरा वगैरह पढ़ते हैं, तो कोई बुरी बात तो नहीं है, अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा कोई गुलू उलू ना हो। बल्कि सेहरे में तो यही होता है, सबकी तारीफ होती है, सबके दूल्हे के लिए दुआएं होती हैं, दुल्हन के लिए दुआएं होती हैं, तो सेहरा वगैरह पढ़ना, ये मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कबाहत नहीं है, यानी कोई नाजायज नहीं है, बल्कि जायज ही है। शर्त यह है कि उसमें म्यूजिक, ढोल, ताजे, गाजे, बाजे, हारमोनियम और ये तमाम सब चीजें ना हो, बल्कि जैसे अभी शायर लोग शेर पढ़ते हैं ऐसे पढ़ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। दौरे हाजिर में सीमांचल में, हमारे इस इलाके में शादियों में लोग लड़की वालों से जहेज के तौर पर रकम वसूल करते हैं, ये कैसा है? लड़की वालों से 1 टका भी मांगना, टका समझते हो जी, 1 टका भी मांगना हराम है और उससे लेना भी हराम है। जिसने लिया है, ये भी सुनो, और जिसने दिया है उसने भी हराम किया है, और जिसने लिया है वो भी हराम खोर है, और कयामत के दिन ये पूरा अल्लाह के सामने जमा करना पड़ेगा। ये मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जितने भी
भारत नहीं पूरी दुनिया के मौलवी मौलाना है, उनसे पूछ लो, क्योंकि ये जुल्म है, ये हक है। जहेज की शक्ल में जो पैसा या जो माल या जो गाड़ी या जो कुछ ली जाती है एक बेटी को देने के लिए, मुझे आप एक बात बताइए, बाप ने दिया है, बाप कभी मजबूर होके देता है और कभी कुछ बाप बड़े शान वाले गुरूर वाले होते हैं तो फजूल खर्ची करते हैं और अपनी शान के लिए देते हैं, दोनों हराम है। गुरूर में भी मांग करके ये भी हराम है, मांगने वाला भी हराम कर रहा है। अगरचे उसने दिया है वो भी क़यामत के दिन हाजिर करेगा, जिसने लिया है वो भी क़यामत के दिन हाजिर। क्यों? इसलिए कि उसमें उसके बच्चों का भी हक है, उसके दूसरी बेटियों का भी हक है। आपने मिसाल के तौर पर 25 लाख रुपए किसी बेटी की शादी में किसी ने मांगा, दे दिया आपने, वो 25 लाख रुपए आपके 4 बेटे 3 बेटियां और हैं, वो 25 लाख रुपए जो आपने दिए, आप बताएं क्या उसमें इन 3 बेटों का हक नहीं है? या वो 3 बेटियां जो एक्स्ट्रा बैठी हैं आपके घर में उनका हक नहीं है? बोलो। तो आपने तीनों 6 का हक मारकर, बेटा और बेटी, 3 बेटा और 3 बेटी का मारकर एक बेटी को दे दिया और उस नामर्द को दे दिया, जनखे को, जो अड़ा हुआ है कि हमको 25 लाख रुपया चाहिए जब तुम्हारी बेटी से शादी करे। ऐसे आदमी को जूता खींच के मार के भगा देना चाहिए। ऐसे नामर्द से मेरी माँ बहनों शायद बेटियां शादियां न करना। अगर तुम्हारे बाप तक ये खबर पहुंची कि कोई लौंडा तुम्हारे बाप को या उसका बाप मांग रहा है कि हमको इतने लाख रुपए दो, अपनी बाप को बोल दो, अपनी माँ को, कि मैं ऐसे जनखे नामर्द से शादी नहीं करूंगी, मैं कुंवारी रहना गवारा करूंगी, लेकिन ऐसे खबीस मर्द से शादी नहीं करूंगी जो पैसे लेकर के हमसे शादी करना चाह रहा। सब्र करो, अल्लाह से डरो, ये हराम है ये। और इसमें बारात ले लेके जाते हैं, कोई 2000, कोई 500, कोई 1,500, और वहां बैठ के पहले जमाने में तो 2-2 रात 3-3 रातें गुजारते थे, अय्याशियां करते थे। ये सब नाजायज उमूर हैं, इन सबको बंद किया जाए। मुसलमानों, आज चलो बात आई है तो वादा करो, कब तक हम मरते रहेंगे, हम पता नहीं कब मर जाएं, लेकिन आपका आज सामना हुआ है, वादा करो कि इंशाअल्लाह आइंदा अपने बच्चों की शादियां लड़कियों में न जहेज देंगे और न जहेज लेंगे, इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के बोलो। और जिसने लिया है कुछ लोग हाथ नहीं उठा वो अपने ससुर का जाकर के पैसा वापस करे, पैर पकड़ के माफी मांगे कि माफ करना। मियां, एक बकरी का बच्चा आप पालते हो, 8-9 महीने के बाद ज़बा करना हो, या कसाई आकर के मांगता है ना, कहता मुझे दे दो, कलेजा मुंह को आता है, बकरा ज़बा करते हुए देखते हुए। पाला है आप 18-19 साल, एक बाप अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, खिला पिलाकर, सीने पर उसे सुलाकर, थपकियां देकर, रातों रात कंधे पर लाद कर इधर से उधर अपनी बेटी को रोती है, सुलाता है, बीमार होती है, उसके लिए इलाज करवाता है। और आप 18-20 साल की इस खिदमत को लात मारते हुए आप उससे पैसे का मुतालबा करते हैं, और फिर कहते हो हम दीन रसूल, दीन इस्लाम, हम अपने अहले हदीसियत पे। यही बगल में पड़ोसी में सऊदी अरब है, वहीं गल्फ है। हमारे छोटे दिलों को, छोटे भाइयों को भारत के अंदर बड़ी बुराइयां सऊदी अरब की नजर आती हैं। ये नहीं नजर आता कि वहां का लड़का मां को भी 30-30 हजार के सोने देता है, मालूम? वहां का लड़का हार देता है, वहां का लड़का मुकम्मल तरीके से लड़की की कफालत करता है, महर देता है, तब जाकर के उससे शादी करता है। और एक आप हैं कि आप जनाबे अली भिखमंगे बने हुए, इंटरनेशनल भिखारी। घड़ी दे दो, 4 व्हीलर दे दो, 2 व्हीलर दे दो, फलाना दे दो, ढगाना दे दो। ये सब चीजें हराम हैं। ये सब चीजें क्या है? बोलो। और इंशाअल्लाह इस हराम के करीब जाओगे, हाथ उठा के वादा करो, हाथ उठा के, इंशाअल्लाह जाओगे, इंशाअल्लाह। और ये जितना लिया है सबको वापस करना। और लड़कियों, तुम भी सुनो, अपने अपने शौहरों को सोने नहीं देना, बोलना जाके पहले अब्बा को जितना तुमने लिया वापस करो, नहीं तो मैं चली अपने अब्बा के घर।
अल्लाह हम सबको हिदायत का फरमाए। खत्म है? हाँ। 2-3 सवाल है शेख, जल्दी जल्दी हो जाए। देखिए एक सवाल है, वहाँ जजी साहब भी आ गए, मैं उनके लिए ही बैठा था। 7वें दिन के बाद अकीका करना कैसा है? 7वें दिन के बाद ही 7वें दिन अकीका करना है। अगर तौफीक नहीं है तो जब भी तौफीक मिले तब भी कर लो, कोई हर्ज इंशाअल्लाह नहीं है। लेकिन ये कहना कि शादी हमारे बेटे की होगी उसमें करेंगे, उसके फलानी का बेटा होगा उसमें करेंगे, या बाबू सऊदी अरब में वहां से आएगा जब उसमें करेंगे, या बॉम्बे दिल्ली से आएगा जब, ये गलत है, ये गलत है। जितनी जल्दी आपको अल्लाह तौफीक दे उतनी जल्दी अकीका कर लो, बकरा ज़बह कर लो, अल्लाह अल्लाह खैर करे। जी। सवाल है, दौरे हाजिर में मुसाफिर नमाज का कसर कितने दूर से शुरू कर सकते हैं? इसके लिए 15-20 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर कोई हद है या नहीं? ये बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है, मुख्तसर आप मैं बता दूं आपको, न 60 न 70 न 50 न 100 न 200, आप जिस सफर को सफर कहते हैं वो 25 किलोमीटर ही की दूरी पर क्यों ना हो, उसमें भी नमाज कसर है। और अगर वो सफर नहीं है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, आप अंडा बेचने जा रहे हैं, अंडा बेच के आ रहे हैं, वो सफर नहीं होता। आप पूर्णिया जा रहे हैं, पूर्णिया से वापस आ रहे हैं, रोजाना आपकी ड्यूटी है, वो सफर नहीं कहलाता। तो जिसको माशरे के अंदर, उर्फ के अंदर सफर कहा जाता है कि फलाने कहाँ गए, फलाने सफर में गए, उसको सफर कहते हैं। चाहे वो 25 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूरी पर कोई गांव हो, वहां जाकर कयाम कर ले। बात समझ में आई? जिसको उर्फ आम में सफर कहा जाता है। लेकिन कहाँ गए, वो फलाने, वो मुर्गी का अंडा देने गए, मुर्गी लेने गए, बकरा लेने गए, वो फलाना सामान खरीदने गए, अभी आ जाएंगे शाम तक, तो उसको सफर बोलो। हाँ, जज़ाकल्लाह, वल्लाहु अलम बिस्सवाब। खलास। तकरीबन आखिरी सवाल है कि जलसा में मेला लगाना कैसा है? जलसा में मेला, अब ये आखिरी सवाल मौलाना जल्दी में छोड़ दूं, क्योंकि ये इस इलाके में वही ज्यादा रहते हैं भैया। ये तो मेला लोग देखने आते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। चलो यार, आवाज तो मैंने 2 किलोमीटर दूर से सुनी है, मुबारक हो जलसे वालों को कि अभी मैंने एंट्री भी नहीं ली रोड पर और माइक वहां तक पहुंचाया हुआ। तो बेटा तुम जल्दी मेले में रहो चाहे खेले में, आवाज तो तुम्हारे कान में जा ही रही है, और तुम तो सुनोगे तो सवाब पाओगे, नहीं सुनोगे ऑटोमेटिक तुम गुनाह पाओगे। अल्लाह तुम्हें हिदायत फरमाए, और जहां भी रहो अल्लाह हिदायत दे दे, बस कोई मसला नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। बस एक दरखास्त है, मेला है कोई बात नहीं भाई, इसमें फोटो वोटू ना बेचा वचा करो, और जरा अपने लड़कों को लड़कियों को जरा हिजाब और संभाल के रखा करो। ऐसे शयातीन भी हैं जो हमारी बहन बेटियों पे गलत नजर डालते हैं, हमारी कुछ बहन बेटियां भी बेहिजाब घूमती हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें समझ अता फरमाए। अपनी बहन बेटियों की इज्जत व आबरू की हिफाजत करना यह हम सब की जिम्मेदारी है। समझ में बात आई कि नहीं आई? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। जी, वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हमारे बीवी बच्चे आल औलाद इज़्ज़ा क़ारिब दोस्त अहबाब सबकी गर्दनों को अल्लाह जहन्नम से आज़ाद फरमाए, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ से उठें तो रब का वो नबी कायनात का वो फरमान हमारे लिए मुंतज़िर हो कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस तरह की मजलिसों का जब इनकाद होता है तो नज़लत अलैहिमुर रहमा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, और वग़शियत अलैहिमुल मलाइका, रब के रहमत के फरिश्ते उन्हें ढांप लेते हैं। और जब मजलिस खत्म होती है, इजलास खत्म होता है, तो कहते हैं इरजऊ इला बुयूतिकुम वक़द गुफ़िरतुम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लौट जाओ अपने घरों की तरफ, ए अहले मजलिस लौट जाओ अपने घरों की तरफ, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जब हम इस मजलिस से उठें तो हम गुनाहों से पाको साफ हो जाएं, अल्लाह हमें पाको साफ फरमाए, अल्लाह हमारे गुनाहों को पाको साफ फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का फजल और उसका एहसान है कि जिसने बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा, इसमें सबसे अजीब नेमत इस्लाम की नेमत जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई, जिसकी तरफ निस्बत करके हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। आइए, इस्लाम की खूबसूरती क्या है, इस्लाम का हुस्न क्या है, इस्लाम कहते किसको है, इस्लाम का जमाल किसको क्या है, इस्लाम जलसा इंतजामिया, आप लोगों ने बड़ी खूबसूरत जलसा इनेकाद किया है, बड़े ही आदमी दिलचस्पी से, और शेख ने भी बहुत बेहतरीन मजमून
को लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं, लेकिन अफसोस होती है मैं शेख के साथ कुछ दिनों से हूँ, मुझे पता है कि शेख के कानों में जब दूसरी आवाज पड़ती है, शेख जो बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं, यानी जबान से निकलती नहीं। यहाँ देखिए खट 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 मेले की आवाज, वो मशीन की आवाज आ रही है स्टेज में, ऐसा लग रहा है कि यहाँ सुने या फिर उनकी आवाज को सुनी जाए। इसलिए आप लोग बराए मेहरबानी वो मशीन बंद करवाएं। मुझे ऐसा लगता है वो जो घूमता है और जो जोर पड़ता है खट 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 खट, उसी की आवाज है। ये जलसा जब किया गया है तो इन आवाज को बंद किया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अर्ज में ये कर रहा था बिरादरान इस्लाम, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो नेमत दी है उसे इस्लाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जोर से बोलो, इस्लाम। और आप आज जो परेशानियों से मुब्तला हैं, आज आप जो बहुत सारे मुसीबतों को झेल रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर, अपनी जमीन पर, अपने भारत में, अपने घर में, अपनी इबादत गाहों में जो आपको बिल्डोजरों के धमकियां दी जाती हैं, आपको गैरुल्लाह के नाम पुकारने की जो आपको कोशिश की जाती है, और आपको जो ये कहा जाता है कि आप हमारे टैक्स खाते हैं, आप हमारी जमीन पे हैं, आप हमारा ये हैं, आप हमारा वो हैं। पता है ये क्यों है? इसकी वजह ये नहीं है कि आप जो है बहुत बड़े मालदार हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि आप बहुत बड़े हसीन और खूबसूरत हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि आप बहुत बड़े बम ब्लास्टर हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि बहुत बड़े आप ताकतवर और पहलवान हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि आप बहुत बड़े खेतिहर हैं, आप बहुत बड़े लॉर्डलैंड हैं, इसकी वजह ये नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी नौकरियों और बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं ना। इसकी सिर्फ एक वजह है, इसकी सिर्फ एक वजह है, इसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह है कि आपके सीने में इस्लाम का नूर बैठा हुआ है। सिर्फ एक वजह, वो हासिद हैं, शैतान हसद करता है, शैतान जलन करता है, शैतान जलता है कि इसे हम जहन्नम में क्यों ना ले जा सके, हम अपना साथी क्यों ना बना सके, इसे हम अपना दोस्त क्यों ना बना सके। आप जिस नेमत को पाए हुए हैं, इस्लाम की नेमत, ये कोई मामूली नेमत नहीं है। हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें देकर इस नेमत की हिफाजत की है। अजीजान मोहतरम, आप अपनी हिस्ट्री पढ़ो, इस्लाम की तारीख पढ़ो। इस्लाम जब से इस दुनिया के अंदर आया है, तब से लेकर आज तक दुश्मनाने इस्लाम की साजिशों का, जुल्म और सितम का, हर और उनकी ज्यादतियों का शिकार रहा है। वजह यह है कि वो महरूम हैं, शैतान के दोस्त हैं, शैतान इबलीस ने उन्हें अपना लुकमा बनाया हुआ है, अपना साथी बनाया हुआ है। आपसे दुश्मनी की वजह सिर्फ यह है कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम की दौलत आपके पास मौजूद है और उनके पास वो मौजूद नहीं। आखिर क्या चीज है इस्लाम के अंदर जिसकी वजह से वो आपसे हसद कर रहे हैं? वजह क्या है? सबब क्या है? मेरे अजीजों, काश आप इस्लाम की दौलत, इस्लाम को समझ जाए ना। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह इस जमीन का आपको मालिक बना देगा, और ये शैतान और शैतानों के पुजारी, अल्लाह उन्हें आपकी ठोकरों में लाके खड़ा करेगा। अफसोस तो यह है कि न हम खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हम ना मुकम्मल इस्लाम के अंदर दाखिल हैं और ना ही हम मुकम्मल कुफ्र में दाखिल। हम बीच के अंदर टामकटोइयां मार रहे हैं। दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। भारत का मुसलमान या दुनिया के मुसलमानों, दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। सरासर मोम या तो संग हो जा। अजीजाने गिरामी, आपको नाज होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इस्लाम जैसी नेमत अता फरमाई है। बजाय इसके कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। और अल्लाह की नाशुक्री किस तरह से करते हैं पता है आपको? हमें इस्लाम के बारे में खुद इल्म नहीं है। इस्लाम जो इल्म का दीन है, इस्लाम जिसकी बुनियाद और जिसकी असास, जिसकी फाउंडेशन इक़रा पे रखी गई है, पढ़ो। आज हम पढ़ाई से दूर हैं, आज हमारी आल औलाद पढ़ाई से दूर है, आज हमारी बहन बेटियां पढ़ाई से दूर है। आज हमने अपने बाल बच्चों के लिए तालीम का बंदोबस्त नहीं किया। एक रहमत आलम मदरसा कायम हुआ आपके इस इलाके में, जहां लड़के और लड़कियों की तालीम होती है। मैं बहुत देर तक वहां मौजूद था। अभी तक ये जान करके तो बेहद खुशी हुई कि मदरसे में कोई किचन नहीं है, मदरसे के अंदर कोई चूल्हा नहीं जलता है। पता चला वजह क्या है? पता चला कि इस बस्ती के लोग जो 150-200 बच्चे हैं अपने घरों में, उनके लिए हमारी माए बहनें खाना तैयार करती हैं और उन बच्चों को वो खुद खिलाती हैं जैसे आप अपनी आल औलाद को खिलाते हैं।
میرا دل تو اتنا بڑا ہو گیا خوشی و مسرت سے. اللہ اللہ، یہ بستی جو اپنے کھانوں میں اپنے ان بچوں کو بھی شریک کر رہے ہیں جن بچوں سے نہ ان کا کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کچھ بھی ہے سوائے ایک رشتے کے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اسلام کے بچے ہیں. جاگیر کھلا رہے ہیں. اللہ اکبر. آج کے اس دور میں جبکہ اپنی فیملی کا پیٹ پالنا مشکل ہے، جو جائے کہ غریب بچوں کو یا مدرسے کے بچوں کو اپنے گھروں میں بلا کر دونوں ٹائم کا، ان تینوں ٹائم کا ان کو کھانا، ان کو ناشتہ اور اسی طرح سے کھلایا پلایا جا رہا ہے جس طرح سے لوگ اپنے بال بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں. قابل مبارکباد ہیں یہ کیا کہتے ہیں حسن گنج کے لوگ، قابل مبارکباد ہیں اس بستی کے لوگ، جن بستی کے لوگوں نے یہ اجلاس کیا ہے کہ انہوں نے ان بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ مہمان رسول ہیں جو آپ کے گھروں میں جاتے ہیں اور آپ انہیں کھانا کھلاتے ہیں. یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کرتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں. اللہ کی قسم ہے ان کے جسم کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یقیناً آپ کی محنتوں کا ہے، ان کے رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے یقیناً آپ کی مزدوریوں اور آپ کی کمائیوں کا ہے. مجھے ایک بات بڑی عجیب و غریب یاد آ رہی ہے اور یقیناً اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. میں کچھ 2 دن پہلے یہیں پر آپ کے کشن گنج کے علاقے میں ایک دارالمسلمین کر کے مدرسہ ہے، اس کے جو مینیجر صاحب ہیں یا اس کے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں مولانا شمیم صاحب اصلاحی ہیں. ایک دفعہ انہوں نے اپنا ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اپنا ایک ذکر کیا، انہوں نے تذکرہ کیا، کہا مولانا سب جگہ جاگیریں لگ رہی تھی، ہماری بھی جاگیر ایک جگہ لگی. جس جگہ ہماری جاگیر لگی میں حیرت میں پڑ گیا جب لوگوں نے کہا وہ ایک عورت ہے. ہمارے مینیجر جس مدرسے میں تھا انہوں نے بھی کہا وہ ایک عورت ہے، اس کے بال بچے نہیں ہیں، نہ اس کا کوئی کمانے والا ہے، لیکن اس نے بھی مدرسے میں آ کے کہا کہ مجھے بھی ایک بچہ دو، میں بھی اسے کھلاؤں گی، میں بھی اسے پلاؤں گی، میں اسے پالوں گی. کہنے لگے میں اس کے حصے میں آیا. وہ عورت اس کا نہ کوئی کمانے والا نہ اس کی کوئی مستقل آمدنی. وہ کیا کرتی تھی؟ وہ گاؤں میں بھیک مانگتی تھی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے. اللہ اکبر. اس نے کہا میں کھلاؤں گی. کہا تو کیسے کھلائے گی؟ کہا جیسے میں بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پالتی ہوں ایسے ہی میں اس بچے کو بھی پالوں گی. اور وہ بیچاری دن بھر بھیک مانگتی، کھانا پکا کے دوپہر کو ان کو بلا کر کھلا کر چابی دے کر اور پھر چلی جاتی بھیک مانگنے اور بولتی کہ بیٹا جب بھوک لگے تو آنا، چابی لے کر کے تالا کھول کر کے اور کھانا کھا کے چلے جانا. آج وہ شخص ایک عالم ہی نہیں بنا، آج مولانا شمیم اصلاحی دارالمسلمین کے جنرل ڈائریکٹر ہیں. آپ جا کے دیکھیے جو شخص ایک بھکارن نے اس بندے کو پڑھایا، ایک بھکارن نے اب بھیک مانگ مانگ کر اس مہمان رسول کو پڑھایا. آج اگر اس کی روح ایمان پر پرواز کی گئی ہوگی یا آج وہ اگر زندہ ہے تو وہ قابل فخر وہ عورت ہے. اللہ اکبر. جس نے بھیک مانگ مانگ کر کے ایک مہمان رسول کو عالم بنایا، آج وہ شخص اکیلا شخص اس نے دارالمسلمین جیسا ادارہ قائم کیا. آج 450 500 لڑکے لڑکیاں وہ خود کفیل ہے انہیں کھانا کھلاتا. بولو سبحان اللہ. ایسے بیٹھے ہو آپ جیسے آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. جناب علی کتنی بڑی بات ہے یہ. آج جن بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں یا میری مائیں بہنیں بنا بنا کے کھلا رہی ہیں، یقیناً اخلاص ہے، للہیت ہے، مجبوری تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہی کسی استاد سے آگے شکوہ بھی ہوگا، بلکہ محبت سے کھلا پلا رہی ہیں. کل کو یہی بچہ حافظ قرآن بنے گا، کل کو یہی بچہ عالم دین بنے گا. مجھ جیسا فقیر طالب علم بیٹھ کر کے تقریر کرے گا. یقین مانیے لفظ لفظ پر، حرف حرف پر اگر اسے نیکیاں ملیں گی تو مرنے کے بعد آپ کی بھی قبر میں وہ نیکیاں جائیں گی. آپ نے جس دریا دلی سے ابھی 500 5000 10,000 20,000 25,000 آپ نے جو ابھی چندہ دیا اس ادارے کو، اللہ اکبر. اوپر سے یہ بھی کیا بات ہے، قابل مبارکباد ہیں. اللہ آپ کے ان صدقات کو قبول فرمائے. بولو آمین. اور اللہ اس کے بدلے میں اللہ آپ کے اوپر جہنم کی آگوں کو حرام فرمائے. اللہ اس کے واتقوا النار ولو بشق تمرہ. نبی نے فرمایا کہ جہنم سے بچو کھجور کا ایک ٹکڑا کیوں نہ ہو.
आधी खजूर सदका दे दो, आधी खजूर खुद खाओ, जहन्नम के आग से बच जाओगे। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने आपके दिल में ये दरिया दिली। काबिल मुबारकबाद हैं इस बस्ती के लोग और इस इदारे के संचालक या इस इदारे को ये जलसा, माए बहनें बेटियां, ये सब काबिल मुबारकबाद हैं। मैं इन्हें सलाम करता हूं, इनके इस दरिया दिली को, इनकी सखावतों को और इनकी इन कुर्बानियों को अल्लाह ताला इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह इसके बदले में इस बस्ती को सरसब्ज़ो शादाब रखे। अल्लाह अमन और सलामती अता फरमाए। अल्लाह हर शर और फितने और शैतान की तमाम मकरो फरेब से अल्लाह यहाँ के लोगों को, यहाँ की बस्ती के लोगों को अल्लाह महफूज फरमाए। इनके धन में, इनकी दौलत में, इनके ईमान में, इनके बाल बच्चों में, इनके बीवी में, इनके दौलत और इनके बिजनेस और तिजारत में अल्लाह तबारक व तआला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह बरकतों से इनको नवाजे और अल्लाह तबारक व तआला शैतान के शर और फितने से अल्लाह इस बस्ती के लोगों को महफूज रखे। इस्लाम कोई मामूली दौलत नहीं है आपके पास, रुपए पैसे, जब जागीरें, जमीन जायदाद, बीवी बच्चे सब इधर रह जाएंगे आपके साथ। ये इस्लाम आपकी कब्र में जाएगा, ये इस्लाम आपकी कब्र में जाएगा। इसको समझो, इसको पढ़ो, अपने बाल बच्चों, अपने बीवी बच्चों को समझाओ, सिखाओ, औलाद को भी सिखाओ। हमें इस दुनिया में इसलिए पैदा किया गया है। इस्लाम का हुस्न और इस्लाम की खूबसूरती सबसे बुनियादी तौर पर यह है कि अपने मानने वालों को अनपढ़ और जाहिल देखना इस्लाम नहीं चाहता। किसी को भी जाहिल देखना नहीं चाहता। अंग्रेजी पढ़ो, साइंस पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, अरबी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हर जुबान पढ़ो, हर जुबान पढ़ो, क्योंकि मोमिन की अल्लाह का यह मुल्क है। अब इस मुल्क को चलाने के लिए हर जुबान जानने की जरूरत है। अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो आप संस्कृत जानने वालों को कैसे समझा सकते हैं कि अल्लाह कौन है? अगर आप हिंदी नहीं जानते तो आप हिंदी जानने वालों को कैसे समझा सकते हैं? अगर आपको नहीं मालूम है तो उसकी भाषा में कैसे बता सकते हैं कि अल्लाह कौन है? अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो अंग्रेजों को आप कैसे बता सकते हैं कि अल्लाह कौन है? आपको बताना है। मेरी माँ बहन बेटियां भी सुन रही हैं, ऐसे इदारे तामीर किए जाएं या जो ऐसे इदारे चल रहे हैं उन इदारों की जिम्मेदारी है कि अपने सिलेबस के अंदर इन तमाम सब चीजों को दाखिल करें और बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, ताकि हम में ये बच्चे आलिम भी बने, हाफिज भी बने, कारी भी बने, IPS ऑफिसर्स भी बने, इंजीनियर भी बने, बैरिस्टर भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। हमारी बेटियां इंजीनियर भी बने, हाफिजा भी बने, आलिमा भी बने, फाजिला भी बने। जी जनाब अली, हम अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को सिर्फ बर्तन मांजने और सिर्फ हम चूल्हा फूकने के लिए नहीं रखेंगे, बल्कि हम अपने बच्चियों को भी ऑफिसर्स बनाएंगे, IPS ऑफिसर्स बनाएंगे। जी जनाब अली, वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, हाफिजा भी बनेंगी, आलिमा भी बनेंगी। ये जज्बा हर मोमिन के सीने में होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला करोगे कि नहीं करोगे मुसलमानों? इंशाअल्लाह हम अपनी बहन बेटियों के लिए ऐसे कॉलेजेस बनाएंगे, ऐसे इदारे बनाएंगे, पर्दे के साथ इंशाअल्लाह हम उनको तालीम देंगे। हमें किसी की मुहताजी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिहार तो सरसब्ज़ो शादाब है। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अली, हुकूमतें बदलती रहती, आज तेरी तो कल किसी की हो जाएगी। आज क्या आपके बिहार में करवट लिया है? बिहार में फिर दोबारा आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनाए गए। माशाल्लाह, उनको लोग पता नहीं क्या क्या लक़ब से याद करते हैं, पलटू 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 पलटू। आज तो पलटू ऐसा जम गया कि दुनिया एक तरफ और वो बंदा अकेला एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मुबारकबाद में पेश करता हूं। अपने इस स्टेज से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें कोई सियासत वादत की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आया है अहलन व सहलन मरहबा, हम उसके लिए यही दुआ करेंगे, हम उसको यही नसीहत करेंगे कि अगर अल्लाह ने आपको बिहार की हुकूमत दी है तो जिस तरह अभी तक बिहार हरा भरा रहा है, इसी तरह से बिहार वालों को रोजी रोजगार दी जाए और इन्हें बाहर जाने से रोका जाए। बाहर किसी दूसरे स्टेट में नौकरी करने के लिए किसी बिहार के रहने वालों को न भेजा जाए। तुम ऐसे उद्योग पैदा करो, तुम ऐसी फैक्ट्रियां लगाओ, ऐसी कंपनियां लगाओ, ऐसे रोजी के यहाँ पर जराए पैदा करो कि बिहार का आदमी जो तालीम याफ्ता होकर के भी दूसरे स्टेटों में जाकर दूसरी हुकूमतों की गुलामी करता है, ताने भी देता, गालियां भी खाता है बेचारा चंद टकों के लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमको अपने मुल्क में, अपने स्टेट में ऐसे उद्योग लगाने चाहिए जिसमें कि ये
बच्चे, ये नौजवान लड़के लड़कियां बाहर मुल्कों में, बाहर देशों में, बाहर स्टेटों में जाने के बजाय आपके बिहार को हरा भरा बनाएं, आपके बिहार के अंदर क्या कहते हैं, उन्नति लाएं, तरक्की लाएं, तामीर करें, अपने बिहार को आबाद करें। ये इसकी जरूरत, और ये हर हुक्मरान को चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट का, चाहे वो किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री या वजीर आजम हो, उसको फिक्र करनी चाहिए अपने आवाम की। ये मेरी दरखास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो तालीम का बोलबाला है, उर्दू का भी बोलबाला है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, और मदारिस भी हैं, वक्फ बोर्ड भी हैं, माशाअल्लाह सब है। दूसरे स्टेट के लोग इन नेमतों के लिए तरसते हैं, आपके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह नीतीश कुमार जी ने पूरा दरवाजा खोला हुआ है। तो आप लोग आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, बच्चियों के लिए भी, औरतों के लिए भी माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें हक और अदल और इंसाफ के ऊपर कायम दायम रखे। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को जुल्म से बचाए और उन्हें हक और अदालत के ऊपर कायम दायम रखे। बोलो आमीन। जी जनाब, कोई भी हो, कोई गधा भी आपका हाकिम बना दिया गया, उसके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह इसे सीधे रास्ते पे चला और अल्लाह इसे अदल और इंसाफ कायम करने के ऊपर मजबूर फरमा दे, तौफीक अदा फरमा कि ये सबकी मदद करें, गरीबों की भी, अमीरों की भी अदल और इंसाफ कायम करें। अदल और बोलो इंसाफ कायम करें। अदल और इंसाफ जहां कहीं भी होंगे, वहां वो मुल्क, वो देश, वो गांव, वो बस्ती, वो इदारा, वो संसदा, जहां अदल और इंसाफ पाया जाए वहां उन्नति होगी, वहां तरक्की होगी। और जहां जुल्म होगा वो जलील होगा, जहां जुल्म हो, सितम होंगे, ना इंसाफियां होंगी, वो जलील होंगे, रुसवा होंगे। क्योंकि ये जमीन किसकी है? बोलो अल्लाह की है। ये आसमान किसके हैं? अल्लाह के हैं। हम और आप किसके हैं? हाँ जी, अल्लाह के हैं। ये हवाएं, ये फजाएं, ये आग, ये पानी, ये सूरज, ये चांद, ये सब किसके हैं? किसी के बाप के नहीं है, ये सब अल्लाह के हैं। और ये सारे के सारे मुसलमान हैं। ये सारे के सारे कौन है? आपको यकीन आ गया? आया कि नहीं आया? क्यों मुसलमान? क्यों मुसलमान है? कभी आपने इस मसले पे गौर किया? जमीन भी मुसलमान है, आसमान भी मुसलमान है, चांद भी मुसलमान है, सूरज भी मुसलमान है, आग भी मुसलमान है, अंधेरा भी मुसलमान है, उजाला भी मुसलमान है, दरिया भी मुसलमान है, पहाड़ भी मुसलमान है, पेड़ पौधे भी मुसलमान है, जर्रा जर्रा, सितारे सितारे, जनाब आली, कण कण, क्षण क्षण, सब मुसलमान। क्यों मुसलमान? इसलिए कि मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान कहते हैं जो अपने मालिक के आज्ञा का पालन करे, जो अपने मालिक का, अपने बनाने वाले का फर्मा बरदार हो, चिढ़ना नहीं। अगर हम किसी को कहते हैं ये नॉन मुस्लिम है, किसी को चिढ़ नहीं लगनी चाहिए, न किसी को चिढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती, भाई काले को काला नहीं कहेंगे तो क्या गोरा कहेंगे? बोलो ये रात है, हम कह रहे हैं रात है, अब रात चिढ़ने लगी, नहीं नहीं हमें रात क्यों कह रहे हो? हम तो दिन हमको कहो। तो आप रात को दिन कहेंगे? कहेंगे पागल है, बे दिन को रात नहीं कहते भाई, पागल है। जो रात है वो रात है, जो दिन है वो दिन है। गर्मी को ठंडी कहा जाएगा या ठंडी को गर्मी कोई कहेगा? अगर कहता है तो कहेंगे उसका स्क्रू ढीला हो गया, नट बोल्ट इसका सही करो, कहीं ना कहीं इसको कोई कुछ चक्कर है, तो पता ही नहीं। तो सही भैया, मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पैदा करने वाले, अपने बनाने, अपने सृष्टिकर्ता, इस देश, इस कायनात और इस संसार का रचयिता, उसका फर्मा बरदार हो। उसका कौन हो? उसके आज्ञा का पालन करने वाला हो। हमने देखा, हमने जब से हम पैदा हुए आज तक अपने बाप दादाओं से भी यही सुनते आ रहे हैं कि सूरज पूरब से निकलता है और कहां डूबता है? दक्षिण में। दक्षिण में या उत्तर में? पश्चिम में। सही बात है, पश्चिम में। मतलब माशाल्लाह आप लोग जाग रहे हो। ये मैंने पत्थर फेंका है ताकि पता लगाएं कि तुम लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो। ऐसा तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक। अल्लाह आपको इसी तरह से हक सुनने के लिए जागता रखे, इत्मीनान के साथ रखे, तो हमें सुनाने में भी लुत्फ आता है। उठक बैठक जाना आना, फिर हम भी कहते हैं जैसा तेरा खाना वैसा मेरा फातिहा। जैसे तुम बैठोगे वह सुनोगे, उसे हम सुना देंगे। हमें कुर्सियां और मेज और ये शामियाने सुनाने का शौक नहीं है।
सीधी सी बात अजीजान गिरामी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कभी हमने सूरज को पूरब के बजाय दक्षिण या उत्तर से निकलते हुए सुना है या देखा है? हमेशा सूरज कहां से निकलता है? पूरब से। और कहां डूबता है? सीधी सी बात। यानी सूरज भी मुसलमान है, क्योंकि अल्लाह ने जब से उसे पैदा फरमाया तब से लेकर आज तक वो पूरब से ही निकलता है और पश्चिम ही के अंदर डूबता है कि नहीं? सीधी सी बात। आप एक बात बताओ, मैं कहता हूं ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे भारत के लोगों, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, सबको मैं आपको चैलेंज करता हूं, क्या आपकी आंख है, आपके कान हैं, आपके नाक हैं, इसको किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। ये एक मुसलमान की आस्था, अकीदा है और यही हकीकत है। वल्लज़ी या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक। ए मनुष्य, ए इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? अपने रब से, अपने पैदा करने वाले सृष्टिकर्ता से तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? वो मालिक जिसने तुझे पैदा किया और बेहतरीन पैदा किया, बेहतरीन कदो कामत अता फरमाए, बेहतरीन शक्ल सूरत से तुझे नवाजा, किस चीज ने तुझे धोखे, क्यों गुरूर करता है? अपने मालिक को पहचानने से अंधा क्यों बना हुआ है? अल्लाह अकबर। उस रब ने कहा वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ़ यशा, मां के पेट के अंदर एक नुतफा, पानी का एक कतरा मां के पेट के अंदर जाता है, 9 महीने के बाद वही पानी का कतरा अगर जमीन पर गिर गया तो वो बेकार, लेकिन मां के पेट में गया, मां के पेट से 9 महीने के बाद एक हसीन और खूबसूरत सा बच्चा मां के पेट से 9 महीने के बाद जन्म लेता है। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से दोबारा रिटर्न होता है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, वो अल्लाह है जो तुम्हारे नक्शो निगार को, शक्लो सूरतों को पैदा फरमाता है, बनाता है। मां के पेट के अंदर 9 महीने के बाद तुम्हें पैदा करता है। कोई दुनिया में माई का लाल जो ये दावा कर सके कि मेरे पत्थर ने या ईंट ने या सूरज ने या चांद ने या फलाने ने या ढगाने ने उस बच्चे को पैदा किया है? कोई मशीन पैदा करने वाली? अल्लाह अकबर। वो कौन है पैदा करने वाला? अल्लाह है। अल्लाह ने नाक दी, अल्लाह ने आंखें दी, अल्लाह ने कान दिए। मैं कहता हूं, सुनो, आंख का काम क्या है? देखना कि सुनना? आंख का काम क्या है? सुनना। और नाक का काम क्या है? और आंख का काम क्या है? देखना। अल्लाह ने आंख बनाई तो आंख से कहा तुझे देखना है, देख करके पता लगाना है कि सफेद कैसा होता है, काला कैसा होता है, रंगों का पता लगाना है तुझे। अच्छा कहां है, बुरा कहां है, खड्डा कहां है, सब कुछ देखना, अच्छा बुरा देखना। कान को पैदा किया तो कहा तुझे देखना तो नहीं है, तुझे सुनना है। आवाज सुन के पता लगा अच्छी आवाज है, बुरी आवाज है, अब्बा की है कि अम्मा की है, भैया की है कि मौलाना महराज रब्बानी की है कि मौलाना नदवी साहब की है या मौलाना फलाने साहब की है। पता लगाना ये किसकी आवाज है भी तो कैसी है, अच्छी है या बुरी है। नाक का काम क्या है भैया? सूंघना। लंबी सूंघोगे तो दिमाग तक चला जाएगा, कहीं बदबू सूंघने लगे तो मुश्किल हो जाएगी, पूरा दिमाग ही भंडारा हो जाएगा। नाक का काम है खुशबू और बदबू का पता लगाना। ये आपके पास है कि नहीं है? सबके पास है। हर भाई बहन के पास मौजूद है। आपके पास है, आप चाहो तो इसे छुरी डाल लो आंखों में या कान में, कुछ भी खत्म कर दो। आपके साथ 24 घंटे की आंख रहती है, कान रहते हैं। आप जरा कान को पकड़ करके अपने उसको हुक्म दो, ऐ कान, मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरे पास मौजूद है जब से मैं पैदा हुआ हूं। मेरी उम्र 50, 60, 70 बरस की हो गई है। मैं तुझे हुक्म देता हूं, अब तू सुनने के बजाय देखने का काम करे। बोलो, आपके हुक्म को कान मानेगा? अरे उसके हाथ पैर होंगे ना तो चमाट खींच के मारता। पागल है क्या? हमें बनाने वाले ने जो हुक्म दिया है मैं वो कर रहा हूं। तेरे हुक्म पे मुझे बोलो नहीं चलना। हूं मैं तेरे पास जरूर, मैं तेरी फर्माबरदार हूं जरूर,
सुन 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 करके मैं तुझे फायदा पहुंचा रही हूं जरूर, लेकिन अगर तू ये कहे नहीं तू देखने का काम करे या सूंघने का काम करे तो तेरा ये हुक्म मुझ पे चल सकता है। बहुत आसानी